आयुर्वेद पर बोला बाइबल में, और सोफी साहिब हमारे यूनानी के, उन्होंने मसीहा पर बोला, जो कि बिल्कुल ही एक अलग सब्जेक्ट है। तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आदरणीय विष्णु प्रसाद शर्मा जी, आदरणीय अग्निहोत्री जी, आदरणीय मोहसिन देलवी साहेब, आदरणीय के सिजोरिया सर, प्रणाम। वैद्य राजन पटनकर सर, आज के हमारे स्पीकर सुधाकर रेड्डी जी, मैडम साधना वायकर जी, आप निशांत शुक्ला जी, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं कि आज हम शीत ऋतुचर्या पर है। और मुझे संतोष है कि मोहसिन साहब भी हैं, तो आज यूनानी का भी सीखने को हमें मिलेगा। ऐसी क्या सर्दी में केयर की जाए। आज की खबर है, दिल्ली में 3 पकड़े गए, कलकत्ता में 2 पकड़े गए। अब ये फिर हम लोगों ने स्कोर गिनना शुरू कर दिया। बड़ी आश्चर्य की बात है, अचानक इस स्कोर से मुक्ति पाई थी सर। जीवन में क्रिकेट के स्कोर के अलावा कोई स्कोर देखा ही नहीं था, लेकिन ये कोरोना ने एक ऐसा स्कोर दिखाया, अब वो फिर शुरू हो गया। अब एक नया है, ये कहाँ पकड़े गए, कितने पकड़े गए। तो इसी भयभीत अवस्था में हमको ये नया साल काटना है। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। हम सब इम्यूनिटी वाले हैं, इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, और जो हम लोग गलतियां कर रहे होंगे, हमारा समाज गलतियां कर रहा होगा, वो आज 2 विद्वान वक्ताओं से, आदरणीय अग्निहोत्री जी, आदरणीय रेड्डी जी, आदरणीय मोहसिन साहब और मैडम पारुल जी, इन सबसे सुनकर कि शीत ऋतुचर्या क्या है, हमको कैसे जीना चाहिए और हमको क्या क्या केयर रखना चाहिए कि हम कोरोना के पास ही न जाए, या उल्टा कहें कोरोना हमारे पास ही ना आए। तो मैं ज्यादा समय नष्ट न करते हुए आदरणीय विष्णु प्रसाद शर्मा जी का आह्वान करता हूं कि वो अपने स्वागत आशीर्वचन में कुछ कहें। Okay, good evening. Namaskar to everybody. Respected Buddha Rajan Patankarji, respected Professor V.K. Agnihotriji, respected Professor Pawan Kumar Sharmaji, distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to this evening webinar on winter care to prevent COVID variant. Very important subject. We have very good eminent and expert eminent speaker. First, I want to welcome Professor P. Sudhakar Reddy, Professor and Head, Department of Shastra, JSS Ayurveda Medical College, Mysore. I welcome you, sir. Next, I want to welcome Professor Vinit Agnihotri, ex-professor and head, Department of Shastra, Uttarakhand Ayurveda University, Uttarakhand. I welcome you, sir. Once again, I welcome all the eminent speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this evening webinar on winter care to prevent COVID variant. Very most important subject we have, and today we have very good eminent speaker. So once again, I welcome all of you. Thank you. Namaskar. Over to Pavanji. Thank you very much, sir. Now I would like to request Sudhakar Reddy ji to initiate the webinar, and would like to request Mohsen sir, please stay, because you will guide us from side of Unani. That will be most important. Thank you. Professor Sudhakar Reddy ji, Head of the Department of PG Studies, Mysore. Welcome. Sir, good evening. Namaskar to all dignitaries. Namaskar. Vishnu Prasad Sharma sir, our Mohsin sir, and Professor Agnihotra sir. Namaskar to all. Welcome, Reddy Sahib, welcome.
So my screen is visible. Hello. Yes, yes. Full screen. No, you can go for slideshow. It is in PowerPoint mode. Okay, sir. Wait a minute. Sir. Now, sir. Excellent, Okay. excellent. Okay. Kindly continue. Yes, sir. Yes, sir. Once again, namaskar to all. Today, I am going to share my views regarding winter care to prevent COVID variant. And today morning, by 12 o'clock only, sir has added a tale to prevent COVID variant. Previously, it was not there. Anyway, I will do justice to my topic. And straight away, let us, these are the seasons. All over world, these are the 4. India, we have 6. But all over the world, we can see the spring, winter, summer, and autumn seasons. Now, derivation of our Hemant Rutu or winter season. The name comes from an old Germanic word that means time of water and refers to the rain and snow of winter in middle and high latitude. Winter is one of the 4 seasons and the coldest time of the year that we know very well. Everybody know experiencing in India, especially North India, Delhi and other places. And season of body strengthening. This is also very, very important. Among all the seasons, Rutus in the prevalent in India, the most Balavardhaka, the strengthening is only was Hemant Rutu. And preparation of period for ideal procreation of period. This also, as per this is that Prakamamcha, one word is there. So there, the preparation of the ideal procreation also, it is a good season. And the time, the days are shorter as we are feeling nowadays, the nights are longer. Winter begins at the winter solstice. In the northern hemisphere, the winter solstice is usually December 22nd. Just recently, it was high. And in southern hemisphere, the winter solstice is usually June 22nd. In that winter comes after autumn and before spring. As per Ayurveda, this Hemant Rutu or winter season starts from the Visarga Kala, that is Dakshinayana Kala, Margashirsha and Paushya Masa, mid-November to mid-January, early winter. And also one more season that is called Shishira Rutu. This is also Magha Falguna, mid-January to mid-March, late winter. Both can be taken as a winter in Ayurvedic aspect. And the status of the body. In our, as per Ayurveda, the Deha Bala will be Sreshta, Agni Bala will be Prabala, Madhurasa Pradhana will be there, Kapha Sanchaya and Pitta Prashamana. These 2 words are very important, Kapha Sanchaya and Pitta Prashamana. And status of Agni, why it is Agni is more. Balinaha, Shida Samharo, Demante, Prabalo Analaha, Bhavatalpandano Dhatum, Sa Pachetyanu Ritaha, Ato Hime, Aspin Seveta, Swadvamla Lavanastrayan. This is that the cold climate and other things will be covering with the skin, so that inside the Agni will be more. That Agni, if it is more, the person has to take a heavy food or heavy to digest and strength giving food. Otherwise, that will be eating the dhatus. As they says that when fuel is more, when dhatu, we are not taking food at all, then the rasas will be destroyed. That's why they says that in the this Rutu, when there is Agni is more, definitely we have to take Swadvamla Lavana rasas. And what are the features according to Ayurveda? Vayuruttaraha Shito Rajo Dhuma Kula Dishaha. The wind comes from the Uttara Disha, it will be Shita, cold, and Rajo Dhuma. So the total environment will be covered with the Rajo and Dhuma. Chennas Tusharaihi Savita Himanadha Jalashaya. All the water plants, like water columns, like it may be ocean, it may be ponds, it may be nadi, etc. All will be covered with the mist. So that's exactly the features of the Hemant Rutu. And Darbita Tva Anga Kanga Tva Mahisho Urabraha Kunjaraha. So the activation, the animals will be very active. Crow, rhinoceros, buffaloes, horse and monkeys.
And flowers in the environment, the flowers like Lodra, Priyangu, Nagakesara will be more flowering season. And the climate, weather will be cold, the air or wind element will be high, blow of cold wind starts and chillness is felt all over the Hemant Ritu. And that's why Acharyas mentioned that what are the food should be taken, because when we have more Agni in our body, to get the whatever food you take digest properly, if you are not taking proper food, the Agni which is high will be in turn eating the dhatus. That's why Acharyas mentioned food predominant of sweet, that Madhura, Amla, Lavana, fatty foods, the Snigdahara, and milk products, sugarcane products, and cereals like new rice, Navanna, Goduma, and flour preparations, pulses like black gram, it's a Guru Ahara, and sesame, tila, meat and meat soup of aquatic animals, Madira and Sidhu wine type of sugarcane juices and type of alcohol and honey. So these are all will gives strength to the body, and also it will be little heavy to digest. That's why the Agni which is more in our body will be balanced. That is for purpose only Acharyas mentioned this type of food should be taken in this Hemant Ritu to stay healthy. And what are the behavioral regimen? As we are experiencing, everybody is a shutter and etc. Because that's why full body oil massage, that is Abhyanga, Udvartana, and especially Shiro Abhyanga, and using room heaters. If you go to Delhi or any other places, the heaters will be there. The same concept also mentioned in Ayurveda. Wearing heavy and warm cloths, wrapping of the body with silken and cloth blankets. This silken and cloth blankets will give more heat generation. That's why they specifically mentioned that type of cloth to be wrapped. And warm water bath, anointing body with saffron, agaru, and kumkuma. And use of medicated smoking, Dhumapana especially mentioned. The Dhumapana will be giving some circulation in the body and heat generation in the body. That's Dhumapana mentioned. And physical exercise, certainly it gives more physical body strength. That's a physical exercise. And sun bath and excessive sexual intercourse also they mentioned in the Hemant Ritu. And that, see, in Ayurveda reference is there like what we discussed previously, that is room heaters. So they says that Angara Tapa Santapta Garbha Bhuveshma Charinaha Shita Parushya Janito Na Dosho Jayate. Astamrita says that persons who spend their time residing in houses kept warm by fire, in innermost apartment encircled with the others, or in underground chambers, will not be affected by diseases due to cold and dryness. So in the Hemant Ritu, there will be more Shita and more Rukshatva will be there. To prevent that one has to stay in these houses. That is nothing but in modern day we are applying staying in the room heaters or heated rooms. Okay. And unwholesome food, which food can be avoided? Foods which are easily digested, because when the Agni is more, when you are taking Lagu Ahara, it will be digested easily, and then it will be increasing the or likely vitiate the Vata. That's why Vata Rogas may occur. That's why proper food should be taken. And food which are cold and dry in nature, because already cold is there or dry is there, and that's why may increase the Vata. And avoid underfeeding. Pramitahara. Charaka clearly means Pramitahara, that is not insufficient food, that should be avoided. That means sufficient food should be taken to nourish the Agni and also Dhatus. If you are taking less food, the Agni which is present Prabala, which may in turn eats the Dhatus and result in the emaciation. That's why Pramitahara should be avoided. And Udamanta, intake of gruels also should be avoided. And food which causes indigestion should be avoided. And cold drinks. In the cold season, again the cold drinks may increase the dryness and cold in the body. That's why we have to engage. And unwholesome behavior regimen, exposing to strong wind and cold wind, because in morning time there will be breeze will be there. That breeze may not be good for health. That's why we have to avoid it. And day sleep also can be avoided in this season, because the days are very less and longer, night is longer. That's why day sleep, if you avoid, we can get nice sleep in the evening time, and also night also more time will be there to sleep. Okay. And late winter, in this winter, that
Shishir Rutu and Hemant Rutu. Now Shishir Rutu, similar in nature of the early winter, except more dryness will be felt. So in the January 15th onwards, February in between, there will be more cold will be there. That's why it is Shishir Rutu. We can feel that whenever more cold is there, you can say that the Shishir Rutu started. So in this season, entire prescription of early winter, that is Hemant Rutu, can be followed little extra. Shishire Shitamadikam Vata Vrishya Kuladishaha Shesham Hemantavat Sarvam Vigneyo Lakshana Budaihi. The intelligent person should follow entire Hemant Rutu except something that's called Shishir Rutu is more Shita. Rain presents along with the Shita Vayu all over the ground. That's a more cold will be there. To combat this more cold, Acharya has mentioned that cereals and pulses, wheat gram, flour products, new rice, corns, and others prescribed. Even in this season, the ginger, garlic, fruits of Terminalia chabula, and the fruits of Piper longum, sugar cane products, milk and milk products are advised in the diet. In this season, especially spending more time in windless and warm houses again, especially mentioned in the Shishir Rutu. And what not to do, avoiding foods and drinks processed with a pungent, bitter, and astringent taste. That's Katu Tikta Kashaya, as well as the Shita and Shita Pana Anna can be prohibited. And sleep at late night should be avoided because the night is more. That's why late night should be avoided. As we are not going to sleep in the daytime, that's why sufficient sleep in the night. Again, late night should be avoided. And that's why Acharya Charaka says, Shite, Shita and sponsor show. Because of the Shita Sparsha, there will be closing of the pores of the skin. That's why the Agni will be more. While saying the diet and beverages, as I mentioned previously, Acharya Charaka says that Gorasan, Ipshu Vikruti, Vasam, Tailam, Navodakam, Hemante, Abhyastasya, Toya Mushnam, Cha Ayurna Yate. If you follow this Ahara and Vihara, the person can keep prolonging the lifespan. Otherwise, the lifespan will be decreased. That's Cha Ayurna Yate. If you want to prolong your lifespan, especially in the Hemant Rutu, if we follow these rules and regulation, the body growth and development will be there. And also same time, lifestyle mentioned already, Abhyanga, Usadana, Muditailam, Jaintakam Atapam, Bajed, Bhumigramcha, Ushtam, Ushnam, Garbagrum Tata, Gurushnavasa, Digdango, Guruna, Agurun, Sada, Shane, Pramadam, Pinam, Vishalopajitam. The bed should be very Vistara, that is sufficient length, and also should be covered with the very heavy cloths. And also sexual health aspect, we mentioned clearly, Alingyam, Aguru Digdhangi, Supyat, Samadam, Manmataha, Prakamamcha, Nisheveta, Maitanam, Shiragame. So in these rutus, there will be more Prakama will be there. That's why the sexual health can be maintained by having the more sexual intercourse. And contraindication also that Varjayet Annapanani Vatalani Lagunicha Pravatam Pramitaharam Budamantam Himagame. When Agni is more, when if you are not taking food, there will be Vataprakapa will be there. That's why Varjayet Annapanani. Whatever Annapana which increases the Vata and Lagu nature should be avoided. And Pravatam should be avoided. Pramitahara, that less quantity intake of food also should be avoided. And Shishir Rutu, this is that additional care in Shishir Rutu according to Acharyas, Tasmat, Haimantikaha, Sarvaha, Shishire, Vidirishyate, Nivata Mushnam, Tva-adikam, Shishire, Gruhamasrayet. See, Nivata Mushnam, Tva-adikam, Shishire, Gruhamasrayet. As we are feeling January is coming, there will be more January, more Sita will be there. That's why cold will be more cold. That's to protect that one, we are keeping ourselves warm. That's why Gruhamasrayet. Contraindication again, Shishir Rutu says, Katatikta Kashayani, because this Katatikta Kashaya going to vitiate the Vata. That's why Vata and Lagu Ahara should be avoided in the Shishir Rutu. And factors to be Pachantan. So while telling Bala Vriddhikara Bhava, Acharya Charaka says, Bala Vriddhikara Swime Bhava Bhavanti Tadyata Balavat Purushe Deshe Janma Balavat Purushe Kalecha. Why I quoted this sloka here means
Janma Balavat Purushe Kalecha. While commenting on this line, Chakrapani says that the Shita Kala is a good for getting good progeny, or there is naturally the Shita Rutu, the Hemant Rutu and Shishir Rutu will be giving strength to us. Okay, and this is purpose the people, those who are taken birth in this Hemant and Shishir Rutu may be having naturally good bala, like Balavat Purushe Deshe. So the people, those who are taken birth in the Desha, like Sindhu, example Punjabi, then naturally they will be healthy. They will be more bala will be there. The same way, Balavat Purushe Kalecha, while coming that one, the Shita Kala, those who are taken birth, definitely they will be under good health. So this can be conducted as a research. The people, those who are taken birth during the Hemant and Shishir Rutu, how they are naturally, whether they are natural immunity more and whether they are having less number of diseases prevalence among them. So based on this year, I have given my PG scholar a study to conduct a survey work, the people, those who are taken birth in these 2 months, and especially November, December, and January. And let us see that whether they are having more bala comparatively other Rutus taken birth people. So there are some only we have taken not biochemical markers, only assessing the health according to Ayurveda, according to modern, assessing their morbidity, how frequently they are getting diseases. Those are taken birth in the Hemant and Shishir Rutu, those are taken birth in the Grishma and Ritu. Okay, this is what I want to say, that the Kala is very, very important. Hemant and Shishira, that is good for health. And researches, prevalence of disease also, there are some researches underwent. Few studies also find out positive correlation between attack of asthma in winter season, and contemporary science also have evidence regarding the seasonal affective disorders. So there is a concept called as seasonal affective disorders, the mood and etc. So same way in the this Rutu, there will be more asthma attacks. And the same way, cellular immunity was found to be high in winter than in summer. That's what Acharya Charaka's Kala, Shita Kala is very good for health, that people, those who are born in that Rutu may be having more immunity. So in the research also, it came to know that during the winter, there will be cellular immunity very high. And prevention of COVID variants, just I wanted to highlight that it improving host defense mechanism. By improving the host defense mechanism, we can prevent all COVID and COVID variants, whatever COVID variants are there. By what? In the Hemant Rutu, they mentioned Dhumapana. The Dhumapana will clear off your or protects the nasal mucous membrane properly. The entry of COVID organism through nose only. That's why there the nasal mucous membrane will be proper and will trap the COVID viruses or COVID variant viruses and may able to kill it or may prevent to enter inside. That's why Dhumapana, Abhyanga, that is again the immunity power, and Vyayama, physical resistance, and keeping warm the body. When warm the body is there, when more heat is there, the COVID variant may not be survive. And Ahara, whatever Acharyas mentioned, the Balavriddhikara Ahara, it is a antioxidant food is there. So that's why it may prevent the COVID-19. So if you follow Hemantracharya, whatever Ahara they mentioned, that will be going to improve your immunity. Once your immunity is good, the protection from the COVID variant can be achieved. And the importance Rucharya, Charaka says, and Yogaratana says that Rutishveshu ya rogastaistu vidir bhavat pratate naraha doshan rutukritan naiva labate sa kadachan tasya ashitadyahara balam varnascha vardate tasya rutusatmyam viditam chestahara vipasayam. Again, Susa says that Rutavruto ya etena vidihi vidhana vartate naraha Ghoran Rutukritan Rogan na apnoti kadachatan. Beautifully mentioned. If you follow Rutucharya properly, the diseases which are going to take place is Ghoran Rutukritan in the Rutus. If you are not following, the diseases
which are Ghora Rutus, that is the most dangerous diseases, which can be prevented by following Ritucharya. That's what importance of the Ritucharya says. And in conclusion, I can say that during winter, the strength and digestion power are more. Hence, one can perform physical exercise more, can undergo oil massage, can have medicated dhumapana, can eat heavy foods to stay fit to prevent viral diseases, especially COVID variants. This is what I want to share. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you for all for giving this opportunity. I hope I have done little only because of some time constraint. Thank you very much, sir. Thank you, Reddy Sahib. Thank you very much. You have really communicated well every principle of Ayurveda regarding Shita Ritucharya, and person should follow it. Definitely, everybody should follow it to avoid our COVID variants also, and to keep himself or herself healthy in winter season. Thank you very much. Thank now you, I would like to request. Thank you, Reddy Sahib. Please bless the platform every day. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Yesterday Now morning, we are busy. I could not able to join. Yesterday I was busy morning, sir. I could not able to join it morning time. Thank you. Definitely, sir. Tomorrow onwards, I will be attending, sir. Thank you. Okay. So now I would like to request Professor V.K. Agnihotri, sir. Welcome, sir. Thank you, Professor Pawan Sharma ji. Namaskar to all. First of all, I would extend my thanks to the IRES whole organizing committee to provide me this opportunity to share our views with this August gathering. And as Professor Sudhakar Reddy ji told that even on short notice, he prepared himself and he confirmed that he will do justice. And out of his presentation, I can say only the justice is being done once. He has completed and justified his presence. So what remains for me to proceed further, because when it is justified, it's wonderful. Well, Professor Reddy sir talked about the onset and the details, instructions given by our acharyas in different epics in our texts. With a full of proud, we can say, we Indians, we have got a certain type of differences and different type of certain things, like weather, like states, like language, like religions, like say so many our way of living. And as far as the seasonal division is concerned, definitely we will have a choice as far as the North India and South India is concerned. Since he comes from Mysore, naturally under the Satpura Pahad, there is difference, because there used to happen the Pravat Ritu, which is not here in North India. So goes the case with the temperature up and down. We are having only 16, 18 maximum and say 6 to 3 minimum, while as in Maharashtra it is 36 maximum and 22 minimum. So definitely for all over India, the Dincharya, the Ritucharya under the heading of different seasons are advocated, cannot be applied to all the sectors, all the states of our country. But having the topic on, especially with the special reference to the COVID onset, and again alarming situation is developing day by day, we would like to say that if we cover Hemanta Ritu, that falls in North India as Aghan and Poos, which is running, and again the next coming season, that is Shishir Ritu, that will come in the months of Magh and Falgun. So in this way, these 4 months are said to be the winter season. Under these 4 months, it happens to be the extreme, and sometimes it starts slower down. So the purpose of the observance of this Ritucharya in both the seasons or during all 4 months, it is very, very important and advocated that what is to be done, what is to be taken
as per the sentence of Professor Reddy ji, what to eat, where to eat, why to eat, how much to eat, it is always applicable during every season. But in the sight of the recent onset, that too, which has been projected as Omicron BF7.7, that becomes a point with a special reference to the seasonal variation. So the concept of Ritu Sandhi or season variation, especially having the extreme temperature down, it prevents a lot of diseases also. So as in our chat box, Professor Ramdas ji very nicely and very say argumental basis told that whether the Jatragni is deep in these months or in this season or the Dahayagni, that is a very valid point. Jatragni is said to be raised, increased, so we are supposed to even consume the Guru Dravyas also. But at the same time, external atmospheric temperature is so down that we have to keep our body warmth. Even we can have a hot water bottles inside the Rajai, especially in North India, to keep ourselves. Only then we will be having in position to have a means marked sleep to develop the immunity. So our concept is months, their temperature, their routine work, and again to increase the body immunity. Because when a person will be having a or enjoying a very good immunity, very naturally, any of the bacterial, viral, or seasonal variations which may cause the disease be protected by the raised immunity. So all the factors which are responsible for the increasement of the immunity, they are to be observed in the terms of diet. If the Jatshagni is so intact or so up to the mark that the person, whatever he will take inside, will get digested. So in a simple manner, we talked about the 4 months, and especially when we talk about the Hemant Ritu, very naturally it's a very important point that in precisely I am not a favor of going for any of the repetition fact, but naturally a few guidelines, they are so important that they can be kept in mind simply because of the having some sort of directions which everyone can follow, irrespective of the say geographical situation. So important is that we have to see the concept of Adankal and Visarkal during these 4 months or these 2 ritus. So the strength is minimum in Grishma Ritu to maximum in the Hemanta Ritu. This is what the instruction we can enjoy the things in the form of the having a good thing in a particular manner. So good exercise and Ruksha Devas, etc. should be practiced. The measures to remove the accumulated kapha dosha, shodhana chikitsa are also indicated. But the idea is we are coming from the Sharad Ritu. So the concept or the regime we followed in Sharad Ritu, we have to taper down and we have to go for the newer steps to maintain and to maintain the health and to increase the body immunity. In that way, in the Sharad Ritu, the environment gets heated up after the cold effects of rainy season. So that's why the Pitta dosha gets initiated in the season, and the measure should be to prevent the pathic diseases. This is the point. Medicated ghee purgation in form of virechen, bloodletting, rakshamokshana, etc. should be undertaken. Sweet, bitter, and stringent taste known to be pittahar should be consumed. Professor Das have told that then what is the role of lavana, as it will increase sort of kapha status, and that will ultimately lower down the agni. So it will be again a point of discussion that which of the rasa yukta ahar we are supposed to take. Very naturally, this is what the point. So in this way, the different proceedings to be undertaken in different seasons are prescribed in our basic hygienic manner, especially the natural accumulation and vitiation of the doshas should be evaluated and be scientifically seasoned to prevent the onset of the diseases. Because we are just talking that when the onset of disease happens, that too in the reference of the
change of season or change of month, that is Ritu Sandhi, or a particular onset of the complete new season. So the practices followed in one season should be taken up gradually in the beginning and left gradually at the end. This is the basic concept, and it is applicable on the change of each and every Ritu. Then only we will in position to protect ourselves from the seasonal changes, environments happening, diseases, may it be bacterial or viral, as I told you earlier. So the last week of one season and the first week of the other season are called Ritu Sandhi. So the period where the earlier practice is left and newer practice is to be followed gradually. Our basic and scientific concept is applicable on this point of view. So this kind of gradual change in the food and the habits naturally makes a person as a free from the asatmaj vyadhi. We are supposed to be, because on one end we were not taking these things, on other season after the onset of say 8 days we become qualified or able to consume those things which are recommended for the change of the ritu season. So this is very important, and that is very, very important in the concept of the change in ritu as far as the our concept. So if wisely I tell, for the purpose of the other Hindi speaking areas, our simple patyahar which we can go for Sharad Ritu ought to change ourselves from Sharad Ritu to next Ritu, that is I can say Shishir Ritu, that goes to Magh Falgun, since it is the accumulation of Kapha dosha. So Pachakagni ki tivrata, the intensity of our gastric fire, or you can say gastric Agni, Megh Varsha, Sheet Lehar, हवाओं से our lips, our skin, it gets dry or it can tear because of the say on above altitude, it leads to the frostbite too. So one has to be very careful, because we are the almost nearmost cities to Uttarkashi, Teri, Dehradun, etc., where used to be at high altitude the say that this snowfall. So when there is snowfall, here comes the winter raining. So that is very harmful, and that becomes the that alerts ourselves to protect our body from the cold and environmental cold, and keep our body warmth, along with not only the say simple diet, but the dry fruits also. So goes the case with our some of the supportive aushadhi in a form of rasayan like Chyawanprash, etc. So when again the same thing comes, as we have started the haldi say medicated milk, then again it leads to the warmth to the body, and it also improves the blood circulation within the body, which is very, very important, because it is the blood which carries right from lowermost part, the greater toe, to the scalp, to the hair. So that is very, very important to see that how we can manage ourselves and how can we protect from the onset called diseases and maintain our Vyadhi Chamattu. So these two ritus are equally important to deal with, and to see that whatever the ahar, whatever the exercises, whatever the ahar and bihar is really advocated, it should be very important to be followed. Especially I come to a point which is known as the Ritu Harit, because this is one very favorable point where we can talk about, because this is the Haritki which is advocated in all the seasons with some of the Sepan. So in this case, in case of Hemant Riti, it is advised to consume Haritki with Shunthi. So that is very important. So goes the case with the our Shishir Ritu. Here they have advised us to consume Haritki with the Pipli. So this is what the combination and permutation and combination. We have to have all the 6 rasas as per the body requirement and as per the rearrangement in the Vat, Pitta and Kapha status, so that the Vat, Pitta and Kapha, we remain in the equilibrium even on the onset of, or even in the change of the certain diseases, which ultimately makes us capable to face the environmental change, the seasonal change, the temperature change outside the body, because we are having our
body temperature always in the normal condition. But to maintain that normal temperature, we will be supposed to observe the observance of certain regimes of season. Otherwise, on contrary, we may be affected by any of these seasonal changes, multiplication of bacteria and viruses, and this mutation of Omicron BF.7 is of the same thing. Since China is also a very cold say country, and it starts there. So cold countries, may it be Brazil, may it be UK, US, these all are simply having the first name as countries which are getting affected day by day. And daily the toll is raising. US has got a snowstorm for last 2-3 days, and recently they don't report, but 28 plus persons lost their lives. So this cold wave itself completes so many persons say life simply because of the extreme cold. And when it amounts in the form of the infectious disease, we are all supposed to be alert. So we Indian, we are supposed to not only keep ourselves away or can stop the infected person coming from outside. Our seasonal regime is to be followed with all the instructions which has been laid out by Professor Reddy ji as per the say Swasthavath system with the help of the references of our textbooks. But we have to come out from our text. We have to be much more practical in the reference of, because everybody is not going to even neither going to read text, not going to understand the shlokas. Our waypoint is this, that in a very simple manner we can say that we have to keep our body warm with the help of the external tools, whatever is there, especially in North India, and we have to keep our body warm with the help of the good quality food consumption, and especially the dried fruits and some of the our Ayurvedic rasayanas. Of course, Unani rasayana is equally important. So the concept is this, that may it be any infection, but we have to be very alert at the time of the seasonal change. This is what the advice given from our text, that Ritu Sandhi Kal or Amdasta Kal are very important. When the body settles down or acclimatize after the onset, proper onset of the season, we can be a little bit liberal. But otherwise, as we go outside, our team goes outside, cricket playing and all that, they leave our country and reach there 15 days before at least, so that they get themselves acclimatized and not to get any disease or fever on body act as such. Then only they play. Indian play in lots, very naturally a great difference in temperature. That is our diet and our exercise, our proper sleep, and our instructions given in the seasonal variation or the geographical changes. We can protect ourselves, may it be say Omicron variant BF.7 or any other thing. And our text is completely rich regarding the say contagious diseases or the seasonal variations, vitiation of doshas. That's why our Sanchay Prakoprasam concept is there. And doshas Ansankalpana for the diagnosis of diseases and a proper diet regime. Here also a very important point of Ahar with Visheshasanas. Here also a very important point regarding the Sanyog Virudh Ahar. We are not supposed to consume the off-seasonal vegetables. This is again a curse, but on fashion or affordability or show off, they go for summer season vegetables during winter. May it be Karela, may it be say Loki Turai, Vindi. These are there in say summer season. And again, this brinjal is one thing which is available all the season. It is also useful, and it is also available in winter. It is also available in summer. But it is very clearly mentioned that this brinjal is a treatment of piles if used in winter, while as it is a cause of piles if consumed in summer. So this is what the basic concept there. We have to go for the Ahar Visheshasana as such, and we have to follow the Acharan also. Say exercises, good exercises for the better
circulation of the body, to keep body warmth, to go for Surya Namaskar, so go for say different postures within body without having any such type of great cold wave ventilation when it is extreme cold. We can do that and keep, our instruction is keep our body warm, keep our healthy diet, and we can face not only the seasonal variations adverse effect, but also we will be in position to protect ourselves from the onset of such type of diseases which are happening, which has again started happening, especially with the previous havoc of COVID. So our webinars concept and taking of this topic is become more and more important simply because of that we are here. The Sanskrit persons are here to go and to give certain instructions for diet and for activities, and that will be a great tonic for all these things. Our 8-step yoga within the room will be of great help, because here sometimes 6-7 days there is no say visualization of sun itself. Then again we have to be take some such type of measures to keep our body healthy. But again, flare is better than the direct radiation of the open heaters. This is also easy, because that not only gives our say sometimes it affects to skin also. We have to go for convenient sources or tools to make our body healthy. So with these small suggestions, we have to keep our body warm. We have to consume healthy diet. We have to avoid the off-seasonal vegetables and these things. So we will be in position to maintain our Jatragni and utilize, and all the 11 points which are important for the increasement of body immunity or Vyadhi be helpful, and we should be प्लीज हमको क्रोध नहीं करना चाहिए, भय से रहित होना चाहिए, और हमको इंटॉक्सिकेशन में नहीं जाना चाहिए। हमको अच्छे व्यवहार और अच्छे आचरण और अच्छे खुराक के साथ में अपने परिवर्तन होने वाले सीजनल को फेस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि जाड़ों में जाड़ा नहीं पड़ेगा तो कब पड़ेगा, गर्मियों में गर्मी नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अवर एग्जामिनेशन टाइम। हमारा परीक्षा काल है कि हम इतने चतुर और इतने योग्य हो कि हम समय के अनुसार मौसम के अनुसार अपने बदल सके, अपनी खुराक के साथ में, अपने खान पान के साथ में, और ईश्वर न करे किसी को औषधि की आवश्यकता पड़े, मौसम के अनुसार अगर कोई रसायन द्रव्य की उम्र के अनुसार जरूरत होती है तो लेने में प्रशस्त है, वो चीजें ली जा सकती हैं। बट विद दीज वर्ड्स I thank again to the organizers for giving me this opportunity to talk about on the seasonal variations onset and instruction for taking diet and the activities. So thank you so much. Namaskar. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने तो पूरी बातें क्लियर की, बहुत ही अच्छा सर, मतलब अभिभूत है लेक्चर से। मैडम कामिनी धीमान जी को भी नमस्कार। वो हम मैं आदरणीय मोहसिन रेलवी, मैं अब आदरणीय जी उसमें है जी सर, स्वस्थ व्रत हम लोग अब प्रोफेसर रेड्डी जी के ब्लड में आ गया है स्वस्थ व्रत। तो उनका ये कहना है कि हमको 12 बजे बताया था, ये कुछ नहीं होता है, उनको बताना नहीं चाहिए, टॉपिक पता होना नहीं चाहिए। इतनी पढ़ाई करा चुके, अब तो उनको बस इनवाइट करिए और उनको उनका ज्ञान प्राप्त करिए। जी सर, जी सर। मैं अब मोहसिन रेलवी साहब को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि यूनानी भी आयुष इज इनकम्प्लीट विदाउट यू। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। तो क्या आपके हिसाब से करना चाहिए? और वाकई में अब तो ये कोविड 2 दिल्ली पकड़े गए, 3 कलकत्ता, अब फिर स्कोर बोर्ड चालू हो रहा है। हम लोगों की आंखें हर न्यूज में उसी को तलाशती हैं, कौन कहाँ टपका, कौन कहाँ गिरा, कौन कहाँ प्लास्टिक पैक हुआ। ये कभी नहीं था। 3 साल पहले हम लोगों के जीवन में कभी भी इतनी मौत की खबर की आशा नहीं थी। अब तो हम आशा करते हैं कि देखें, ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है। आदरणीय मोहसिन साहब, समाज को क्या करना चाहिए? जब 3 साल बाद हमने कुछ खबरें सुनी थी चाइना में कि लोग चलते चलते गिर रहे हैं, ये हो रहा है, तो यकीन नहीं आ रहा था। और हमने ये सोचा भी नहीं था कि इंडिया में आएगा, और इंडिया गया वो तो पूरी दुनिया में ये महामारी फैली।
जो प्रोफेसर रेड्डी और अग्निहोत्री जी ने जो कहा, बेसिक कंसेप्ट्स यूनानी के और आयुर्वेदा के सिमिलर हैं, ठीक है ना। ये हमने नोटिस किया होगा ऑल द लास्ट 3 years कि जब चेंज ऑफ सीजन होता है तो कोरोना क्यों बढ़ता है। देखिए लास्ट, जैसे उन्होंने कहा कि लास्ट वीक और लास्ट सीजन का वीक और नेक्स्ट सीजन का जो गैप है या जो मर्जर है, उसमें ज्यादा हमने देखा है कि इन्फेक्शंस बढ़ती हैं क्योंकि प्रिकॉशंस नहीं होती। देखिए ना, अगर हम सुबह निकले, गर्मी है, रात को घर आए, ठंड हो गई, तो बीच में अगर वो कहीं बाहर निकला हुआ है, एनीबडी इज ट्रैवलिंग, सो ही इज नॉट रेडी फॉर दैट क्लाइमेट चेंज। दिन में स्वेटर नहीं पहनता कि यार गर्मी है, और जब तक कि वो घर आता है तो पता चलता है कि वो ठंड इतनी हो गई कि अब वो ठोठर रहा है कि जी मैं क्या करूं। सो दिस इज अ वेरी डेलिकेट थिंग ऑफ चेंज ऑफ सीजन। जैसे कहा कि भाई हमने नोटिस किया जैसे फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में कोरोना क्यों बढ़ता है, बिकॉज ऑफ दिस, एंड देन इट गोज डाउन एंड देन स्टार्ट्स अगेन इन मार्च, अगेन वो सीजन चेंज हो रहा है। तो ये हमने देखा है कि जितने भी हम जैसे कहते हैं कि जी नजला, खांसी, जुकाम, ये सब चेंज ऑफ सीजन में ज्यादा हम नोटिस करते हैं, एंड दीज सिम्टम्स आर सिमिलर टू व्हाट कोविड-19 इज हैविंग। तो जो हमारे टेक्स्ट में, चाहे आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, बेसिकली मेन कंसेप्ट तो वही है कि हम किस तरह से नजला, खांसी, जुकाम से बचें। जैसे अग्निहोत्री जी ने कहा कि जो नॉन सीजनल वेजिटेबल्स हैं, इतनी एडवांसमेंट्स हो गई हैं हमारे फूड, और कि भाई हर वेजिटेबल हर सीजन में मिल जाती है, हर फ्रूट जो है वो हर सीजन में मिल जाता है। और आप देखिए तरबूज है, इट इज अवेलेबल 12 months। मैंगोज हैं, मैंगोज आर अवेलेबल 12 months। बट जो प्रकृति ने बनाया है कि भाई जिस सीजन में आप फल खाएं या वेजिटेबल्स खाएं उसी में खाना चाहिए, अदरवाइज दे आर हार्मफुल। जैसे कहा कि ब्रिंजॉल है, अगर आप गर्मी में खाएं तो नुकसानदेह होता है, ठंड में खाएं तो उसके लिए फायदा होता है। सो दिस इज ऑल नेचर, व्हाट गॉड हैज गिवन अस। लेकिन अब ये दुनिया जो है ना, इट इज गोइंग अगेंस्ट दैट सिस्टम, और इसी वजह से वी सी ऑल दीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कमिंग इन, ऑल दीज न्यू इन्फेक्शंस कमिंग इन। तो अब जैसे चेंज ऑफ सीजन में हम नॉर्मली देखते हैं कि जैसे हल्दी का दूध है, दैट इज वेरी बेनिफिशियल। केसर का दूध है, दैट इज वेरी बेनिफिशियल। इसमें जैसे कश्मीर में कहवा होता है, वहां तो माइनस में जाता है, तो वहां एवरी हाउस में अगर हम शाम को देखते हैं तो केसर, हल्की सी, बहुत हल्की सी चाय की पत्ती डाल दी, केसर डाला, बादाम डाले, दालचीनी डाली। सो ऑल दिस हीट्स अप द बॉडी, और ये फायदा भी देगा, नजला में भी करेगा। कोरोना नॉर्मली इट्स इन्फेक्शन, उससे भी ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंड इट कीप्स अस अवे। सो हमें बेसिकली अपने आप को कवर करना है, सही डाइट लेनी है। अब कश्मीर में हम देखते हैं कि हर घर में एक हमाम होता है, इट्स वहाँ बिकॉज लाइट की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो वहाँ हर घर में एक हमाम होता है। इट इज बेसिकली फायर दैट इज घर के नीचे फ्लोर में एक कमरा होता है उस फ्लोर के नीचे वुड से ये आग जलाते हैं, एंड दैट वन रूम इज हीटेड अप। तो वो नेचुरली वो इस बेस से वो उसको बनाते हैं कि नेचुरल हवा उससे पास करती है, सो इट कीप्स ऑन बर्निंग। यू डोंट नीड टू हैव अ ब्लोअर टू कीप इट रनिंग। सो वो इस एंगल से बनाते हैं वो। सो ऑल दीज थिंग्स दैट जैसे एक जुशांदा है हमारा, जुशांदा इज अगेन, इट्स अ मिक्सचर ऑफ हर्ब्स जो आप एज अ टी कैन बी यूज्ड to prevent nazla, khasi. So all these things are useful for preventing infections coming in, increasing our immunity. अब वही है ना, हर 3 साल से हम वही हर साल ये देखते हैं कि जी एक टाइम पीरियड आता है कि अगेन वो मास्क का सिस्टम, सोशल डिस्टेंसिंग का सिस्टम। अब लोग परेशान भी हो गए, कि भाई क्या करें। सो
वो थोड़ा सा बचते भी हैं इससे, मास्क ना पहने यार, इतने साल पहन लिया अब छोड़ो. सो दिस अगेन इंक्रीजेस द चांस ऑफ कैचिंग कोविड. लकीली 90-95% लोग वैक्सीनेटेड हैं. अब आई डोंट नो, अभी तक कंफ्यूजन है कि ये कौन सा वेरिएंट है जो चाइना से आ रहा है. कोई कह रहा है कि जी इट इज ओमिक्रॉन है, कोई कह रहा है कि नया वेरिएंट आ गया. सो बट मेन हमारा जो कंसेप्ट होना चाहिए इज टू कीप आवरसेल्फ free from this, and by increasing our own immunity, having a proper diet as per the season. तो यही चीज होती है. ये कंसेप्ट इज what आयुर्वेदा हैज इज सिमिलर टू what यूनानी इज हैविंग. सो मेन यही है कि भाई जो चेंज ऑफ सीजन का है वो हमें ख्याल रखना चाहिए. आई थिंक दैट इज व्हाट आई वांट टू से. थैंक यू. बहुत खूब मोहसिन साहब, आपने भी वही कंसेप्ट क्लियर करे. रियली ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है कि हम लोग 3 साल से वही बातें करते करते आखिर ये क्या हर साल करनी पड़ेगी, और यदि करनी पड़ेगी तो हम लोग क्यों नहीं सचेत हो जाते सब लोग, चाहे वो आयुर्वेद यूज करें चाहे वो यूनानी यूज करें, अपने संस्कारों में हम लोग लौट जाएं तो हम लोगों की मुक्ति संभव है. चाहे वो कितने भी कोरोना आए, यदि हम लोग इम्यून रहेंगे, हम लोग यदि वेल वर्स्ड रहेंगे कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये बातें रियली आप लोगों जैसे विद्वानों द्वारा बार बार बताई जाएंगी, शायद तब लोगों पे असर पड़ेगा. एक हमारे समाज का बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा कोमल सुकोमल हिस्सा है बच्चे. बच्चों की बात करने के लिए मैं आदरणीय पारुल जोशी जी को सादर आमंत्रित करता हूं. डॉक्टर पारुल जोशी जी, बच्चों पे कैसे सर्दी में उनकी केयर करें. मैडम पारुल जोशी जी, वेलकम मैडम पारुल जी. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. बच्चों में तो ये सीजन काफी दिक्कत वाली होती है. फ्लू में से न्यूमोनिया होने में जरा भी देर नहीं लगती और बच्चे एकदम ही डाउन हो जाते हैं, क्योंकि सुकुमार है जैसा साहब ने बताया. और ये बात है कि बच्चों में ये भी ध्यान रखना होता है कि वे सुकुमार होने के उपरांत वे पूर्ण मनुष्य तो है, यानी उनके सभी एक्शंस जो है वो तो कंप्लीट है. उनको भूख भी लगती है, उनको नींद भी आती है, चिड़चिड़े भी होते हैं, सीजन चेंज होती है उसके मुताबिक उनका मूड भी चेंज होता है. ये सब ध्यान में रखना होता है. और वे डिपेंडेंट है, ये सबसे बड़ी उनकी वीकनेस है. दे आर वेरी मच डिपेंडेंट. वे कुछ अपने आप से कुछ नहीं कर सकते. तो बच्चों को हम देखें तो मेन 3 कैटेगरी में हम ले सकते हैं, अप टू 1 ईयर, up to 5 years and beyond 5 years. तो up to 1 year क्यों लेना चाहिए, ऐसी क्या खास बात है? वो ऐसा फेज है उनके जीवन का जिनमें वे बहुत जल्दी हर मिनट हर घंटे उनका बॉडी चेंज होता रहता है, और इस चेंजेस के वजह से दे रिक्वायर टू मच नरिशमेंट. और उसी वक्त जब सीजनल चेंजेस आते हैं तो, और अगर उनका बॉडी उस वक्त वीक है तो उनके डेवलपमेंट में, उनके ग्रोथ पर उसकी एडवर्स इफेक्ट तुरंत होती है. और इसलिए उनको सीजनल चेंजेस के टाइम पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए. थोड़ी बातें मैं ऐड करना चाहूंगी जो आदरणीय अग्निहोत्री साहब ने बताया था. उसमें इंडिया ये बहुत ही लकी कंट्री है. यहाँ पे हमारे पास 3 तरह की सीजन्स है, गर्म, ठंडी और बारिश. अब इन सीजन्स में हम देखें तो एक बहुत बढ़िया बात है, अगर उसको हम ध्यान में रखें तो पवन साहब आपकी चिंता काफी दूर हो सकती है. जो सीजन है वो पीछे की सीजन को मिला के आगे की सीजन की ओर हमें ले जाती है, जैसे हमारा हाथ पकड़ के एक ओर से दूसरी ओर ले जाती है. गर्मी से हम बारिश में जाते हैं तो एकदम बारिश नहीं आ जाती, उसके पहले थोड़ी नमी आ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है और फिर हम बारिश की ओर जाते. एकदम से गर्मी से बारिश में हम नहीं जाते. वैसे बारिश के
हम सर्दी में जो है वो एकदम से नहीं जाते हैं। हमें महसूस होता है कि अब धीरे धीरे जो है वो वातावरण में ठंड बढ़ रही है और फिर ठंड आती है और ठंड जो है एकदम क्लाइमेक्स पे जाती है, फिर धीरे धीरे कम होती है और होली आते आते हमें गर्मी महसूस होती है तो हम समझ जाते हैं कि हम वसंत काल में पहुंच गए। तो ये अगर हम समझा दे कि भाई ये गर्मी, ठंडी और सर्दी, बारिश, ये तीन चीजें अगर दिमाग में बिठा दे व्यक्ति को कि इसमें इतना इतना आपको ध्यान रखना है, तो प्राय प्राणी कर लेता है। अब बच्चे की बात में तो उसको तो कुछ समझ में नहीं है, उसको तो जो बोलेंगे या जो करवाएंगे वही वो कर पाएगा बच्चा। तो अप टू फर्स्ट ईयर जो है उसका, उसमें हम क्या ध्यान रखेंगे, तो उसकी माता जो है उसके जरिए उसका स्वास्थ्य बनता है। तो अगर माता अपने आप को दाऊ माता नहीं समझती, तो जो दिक्कतें बच्चे के बदन में, बच्चे के बिहेवियर में खड़ी होगी, वो प्राय आजीवन बनी रहेगी। इसीलिए जब वो माता बच्चा लाना चाहती है, उसी वक्त उसको पूरा शेड्यूल बना के हमें देना पड़ता है और उस शेड्यूल का हमें स्ट्रिक्टली पालन करवाना पड़ता है। इसमें माता को बचपन से अगर सिखाया नहीं गया कि यू आर ए फीमेल, यू आर सपोज टू बिगेट, और अगर आप बिगेट करते हैं तो आपके बच्चे को आपको ध्यान रखना है, आपका बच्चा है आप ही को ध्यान रखना है, ये बात बचपन से अगर उसको बार बार कही जाए और वो देखे दूसरों को कि उनके बच्चे जो है उन पे ध्यान नहीं दिया तो बच्चा कैसे परेशान हो रहा है, तो ही वो अपने बच्चे को संभाल सकती है। बाकी जो मॉडर्न मदर है उसमें ये दिक्कत बहुत देखने को मिल रही है कि शी डजंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ हर बेबी। हम जितना बोलते हैं वो भी, क्योंकि शी इज टेकिंग थिंग्स कैजुअली, तो वो उसको ध्यान देकर उसके ऊपर अमल नहीं करती, और जब वो अमल नहीं करती तो दिक्कतें खड़ी हो जाती है और हम वैदिक व्यवसाय वाले परेशान हो जाते हैं कि भाई ये बच्चा तो अभी आगे चल के उसके फुफ्फुस में विकृति हो गई, उसके श्वसन संस्था में विकृति हुई, अब बच्चा जो है वो आगे बढ़ेगा, उसको पढ़ना है, उसको रिसर्च करना है, उसके लिए उसको फिजिकल पावर चाहिए, और वो प्राण जो है, प्राण मुख्य पावर है, वही रेस्पिरेटरी सिस्टम में गड़बड़ में आ गया। तो इस सीजन का महत्व उसको समझा के हम उसको बोल सकते हैं कि भाई ये सीजन में बच्चे को लंग्स में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसको इन्फेक्शन तो हम आयुर्वेद वाले कम सोचते हैं, क्योंकि अप टू 1 ईयर बच्चा जो है उसको हम प्रायः बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं देते हैं। अभी मॉडर्न माता की बात करेंगे तो वो अलग बात है, इसलिए उसको ध्यान में न रखते हुए सिर्फ नॉर्मल माता जो है, नॉर्मल मिडिल क्लास मदर, वो क्या करती है, वो प्राय 1 साल के बच्चे को बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकालती है, और ठंड में जब उसको खुद को ठंड लगती है तो बच्चे को भी गर्मी में रखती है, तो अच्छी बात है। अब इस वक्त की बात करें तो हम हेमंत से शिशिर की ओर जा रहे हैं, और शिशिर काल में जो है वो तेज पवन आती है। वो तेज पवन अगर किसी ने ध्यान ना रखा और 2 व्हीलर पर बच्चे को लेके गया, या फिर सीधा पवन आ रहा है ऐसी जगह पे उसको लेके बैठा, या फिर स्विंग पे उसको लेके बैठे, तो उस परिस्थिति में बच्चे को जुकाम होगा ही, और वो जुकाम के साथ साथ क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो उसके साथ साथ उसको भूख नहीं लगेगी, क्षुधा की अनुभूति नहीं होगी, और बच्चा चिड़चिड़ा होगा। उस टाइम पे अगर उसको संभाल ले, हम थोड़ा उसको गर्मी में रखे, थोड़ा सेक करे, उसको लोकल सेक हम लोग करते हैं, वो जो जिस पर हम रोटी बनाते हैं उसी को गर्म करके उसके ऊपर जो कॉटन क्लॉथ है उसको गर्म करके धीरे धीरे होले होले बच्चे को सेक देते हैं, तो उसी टाइम पे बच्चा जो है उससे बाहर आ जाता है, तो उसको बुखार नहीं आएगा। बुखार आएगा तो बच्चा एकदम डाउन हो जाएगा, वो नहीं होने देना है। दूसरी एक बात, बच्चे को ऐसा एक्सपोजर हो कि ना हो,
लेकिन साल भर का बच्चा है तो ये उसकी पहली सीजन है, तो ध्यान रख के उसको जिस क्रडल में हम सुलाते हैं उस क्रडल में, या वो जब सोया हुआ होता है तब अजवाइन और लहसुन को थोड़ा थोड़ा पीस के उसको कॉटन के महीन कपड़े में उसकी पुतली बना के उसके नाक के पास रखा करते हैं, ताकि वो प्रिवेंटिव मेजर रहेगा। और अगर किसी जुकाम वाला या इन्फेक्शन वाला उसको बच्चे को उठाएगा, इन्फेक्शन से फ्लू भी हो सकता है, न्यूमोनिया भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है और कोरोना भी हो सकता है, तो ओमिक्रॉन। तो वो सभी परिस्थिति में बच्चे को हमें सुरक्षित रखना है, तो कोई सुगंध जो तेज सुगंध हो, जैसे कि तेज पत्ता है, तज है, फिर केसर है, ये सब स्मेल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है और बच्चे को प्रॉब्लम नहीं करती है। मिंट है, ये सब स्मेल्स बच्चे को प्रॉब्लम नहीं करती है, कोई स्किन इरिटेशन भी नहीं होगा और नेजल इरिटेशन भी नहीं होगा। हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे को भी एलर्जी हो सकती है, तो वो न हो, ऐसी ही स्मेल्स को हमें इस्तेमाल करना है। यूकेलिप्टस जो है वो कई बार बच्चों को इरिटेट करती है, ड्राइनेस ला देती है, और वो ड्राइनेस ना आए इसके लिए यूकेलिप्टस लगाए तो उसके वस्त्रों पर लगाए, बच्चे की स्किन पे ना लगाए, इतना थोड़ा ध्यान रखते हैं हम। अभी बच्चा जो है वो नवजात से चलने बैठने लगा, तो पकड़ के चलने लगा, तो फिर बच्चा जो है उसको थोड़ा अन्न देना शुरू करना चाहिए। अभी इस सीजन में उसको अन्नप्राशन हम करते हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा माता के स्तन्यपान से अब अन्न पे आ रहा है, तो उसकी जठराग्नि जो है वो क्षुब्ध नहीं होनी चाहिए, जठराग्नि मंद न हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कुछ ज्यादा तेजाना वाले चीज या स्पाइसेस जो है वो ज्यादा नहीं दे सकते हैं, तो हम जो खुराक देंगे वो लिक्विड ज्यादा होगा, तो बच्चे को पाचन जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पेय जो बनाते हैं, मुद्गा यूज हर रोज तो हम नहीं दे सकते, तो उसको कभी जो है हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स है वो सभी का हम लोग ऐसा जूस जैसा बना सकते हैं, यानी राब बना सकते हैं, और वो राब बना के उसको पिला सकते हैं। बच्चे को चेंज चाहिए, तो मिलेट्स जो है वो बहुत बढ़िया है, न्यूट्रिटिव भी है और इजीली अवेलेबल भी है और किफायती भी है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। पॉश फैमिली में देना है तो क्या कर सकते हैं, तो वो खीर बना के दे सकते हैं, चावल की खीर बना के दे सकते हैं, ये मिलेट्स की खीर बना के दे सकते हैं। बच्चे को ज्यादा भूख लगती है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो उसको हम हलवा बना के दे सकते हैं। इस सीजन में हम लोग उसमें थोड़ा इलायची, थोड़ा केसर, थोड़ा जायफल डाल के अगर हम हलवा देंगे, बच्चे को 1 चम्मच ही देना है, ज्यादा नहीं देना है, देखते हैं वो कितना पाचन कर सकता है। 1 चम्मच कर सकता है तो फिर 1.5 चम्मच, फिर 2 चम्मच, ऐसा करके बढ़ाते जा सकते हैं। अभी चावल के साथ शहद देने का एक प्रयोग यहाँ पे होता है और वो काफी अच्छा है। शहद देना चाहिए, गुड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि गुड़ और चावल का कॉम्बिनेशन बच्चे को प्राय अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अगर खीर नहीं देनी है आपको दूध नहीं देना है बच्चे को, तो फिर आप उसके अंदर शहद और चावल, शहद और कोई मिलेट ऐसा करके दे सकते हैं। अन्नप्राशन हो गया, बच्चा ठीक से चलने लगा, फिर उसका डाइट बढ़ेगा, क्योंकि अभी वो घूमने फिरने लगा है, तो ध्यान रखना चाहिए कि उसके कपड़े गीले न हो। अगर उसके कपड़े गीले होंगे, पेशाब हो गई या फिर पानी से खेल लिया या जमीन पे पानी था और वहां पे बैठ लिया, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, उसके कपड़े गीले नहीं होने चाहिए और वो अपने आप कहीं ना चला जाए, ताकि वो ठंड या उसको कुछ ऐसा इन्फेक्शन लग जाए, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो दिन में 3 बार हम केसर वाला दूध उसको पिला दे तो इम्यूनिटी उसकी काफी हो जाएगी। च्यवनप्राश हर कोई नहीं खाता पीता है, तो क्या कर सकते हैं, तो ये केसर वाला दूध जो है वो काफी इनफ है। एक बात जो अग्निहोत्री साहब ने बताई,
वो अब जैसे ही जनवरी आएगा तो लोग जो है वो हरी द्राक्ष यानी ग्रेप्स उसको खाना शुरू कर देते हैं। ग्रेप्स की सीजन प्रायः होली के आसपास आती है। हम इतना जल्दी ग्रेप्स नहीं खा सकते, इतना जल्दी हम ग्रेप्स खाएंगे तो जुकाम बिल्कुल होगा ही होगा। हम क्या खा सकते हैं? अनार खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं, एप्पल आते हैं वो खा सकते हैं। ऐसे फ्रूट्स खाए जो इम्यूनिटी भी बूस्टअप करते हैं और इजीली अवेलेबल भी है, सीजनल भी है। जैसा साहब बता रहे थे कि 12 महीने फ्रूट्स मिलने लगे हैं, तो हमें ही अपने पेशेंट्स को बताना चाहिए, हमारे संपर्क में आने वाले सभी को बताना चाहिए। क्योंकि पाइनएप्पल तो अच्छा है, बच्चे को पसंद भी है, लेकिन पाइनएप्पल की ये सीजन नहीं है। अब पाइनएप्पल बच्चे को मत देना। ये सीजन में बच्चे को आम का रस पसंद आता है, लेकिन अब उसको आम का रस नहीं देंगे, क्योंकि इस वक्त आम का पंच भौतिक संगठन जो है वो बच्चे से मेल नहीं खाएगा। बच्चा आपका बीमार हो जाएगा, उसको डायरिया हो सकता है। तो ऐसा हम जब बोलने शुरू करेंगे तो जो हम लोग बाजार जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे है, डिमांड ही नहीं रहेगी तो सप्लाई भी नहीं रहेगी। इस तरह हम अपने पेशेंट को स्वस्थ रख सकते हैं। अब बच्चा जो है 5 साल से ऊपर का है, स्कूल आता जाता है, अपने आप साइकिल चला के जाता है या बस में जाता है, तो वहां पे उसका एक्सपोजर बढ़ जाता है। तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं? बच्चे को हम सिखा दे कि भाई ये मास्क हम क्यों पहन रहे हैं, कान में तेल क्यों डालते हैं, नाक में हम घी क्यों डालते हैं, आंख में अंजन क्यों करते हैं, उसको पहले से ही सिखा रखा है तो बच्चा उसको आराम से स्वीकार कर लेगा। और क्योंकि ये सब हमारे दिनचर्या का ही पार्ट है और मेरे पास टाइम भी कम है, इसलिए जल्दी निपटा रही हूँ मैं। तो ये जो है वो उसको हम नियमित करते रहेंगे तो उसकी इंद्रिय का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो छिद्र प्रहारिण तस्मात्, जो ग्रह यानी कि इन्फेक्शियस डिजीजेस है वो छिद्रों से ही शरीर में प्रविष्ट होते हैं। वो त्वचा हो या कोई भी 10 इंद्रियों में से कोई भी इंद्रिय द्वारा उनका प्रवेश हो सकता है। तो उनको अगर लुब्रिकेट हम रखे, उनका हम लोग स्वस्थ रखे, उनका मार्जिन बराबर करे, तो बच्चे को इन्फेक्शन लगने की संभावना हम काफी कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चे को सीजन के मुताबिक आहार हम बदल के दे तो वो हमें कैसे पता चलेगा? तो हमारे पूर्वजों ने बहुत बढ़िया चीज बनाई थी। हर त्योहार में विशेष खुराक लिया जाता है, विशेष वस्त्र पहने जाते हैं, विशेष गीत आते हैं और उन गीतों में ही बताया गया है आपको क्या करना है। हम जैसे ही संक्रांति आएगी तो सूर्य की उपासना करते हैं। भाई क्यों करते सूर्य की उपासना? क्योंकि हमें सूर्य को एक्सपोजर, अपने आप को सूर्य के सामने रखना है ताकि हमारा हेल्थ बना रहे। इस तरह पतंग उत्सव मनाते हैं। हमारे गुजरात में तो पतंग उत्सव का बहुत महत्व है। तो पतंग क्यों चगाते हैं भाई? तो क्योंकि आप जो है सूर्य की सामने रहेंगे तो जो कुछ भी कहीं पे भी बदन में कफ जमा है तो वो निकल जाएगा। तो वसंत काल जब आएगा तो बदन में वो कफ जमा हुआ है, वो कफ प्रकोपित करके कोई व्याधि की ओर आपको नहीं ले जाएगा। तो ये जो है वो हम ध्यान रखेंगे। विशेष करके इस सीजन में बच्चे में मालिश का बहुत महत्व है। तो मालिश के लिए कई माता बोलती है कि भाई हम सरसों का मालिश करते हैं तो बच्चे को फुंसियां निकल जाती है। तिल का तेल भी उसको माफिक नहीं आता है, तो फिर क्या करना चाहिए? कोपरेल तेल में कड़वी नीम की पत्तियां डाल के उसको थोड़ा गर्म करके उसको छान लो और उससे मालिश करो। अगर बच्चे को कहीं कोई एलर्जी डेवलप हो रही है तो वो इस सीजन में निकल जाएगी। लेकिन मालिश बाल, सर के बाल से लेके पैर के तलवे तक पूरे बदन में मालिश बिल्कुल करना चाहिए। चाहे वो कश्मीर में रह रही हो, कन्याकुमारी में, कलकत्ता में रह रही हो या कच्छ में, कहीं पे भी हो, लेकिन इस सीजन में दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक उसको, बच्चे को मालिश बिल्कुल किया करे। पीने का पानी फ्रिज से बिल्कुल ना दे, मटके का भी ना दे। वो धातु के बर्तन में रखा हुआ, खास करके तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी ही बच्चे को दे और उबाल कर दे तो बहुत अच्छी बात है। तो इस थोड़ा फ्रेम जैसा
मैंने दिया है बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और कोई इन्फेक्शियस डिजीज ना हो उसके लिए मुझे प्लेटफॉर्म पर बोलने की चांस देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पवन साहब, विशेष करके आपका, और आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी की मैं आभारी हूँ। शुभ रात्रि। शिवरात्रि। बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा। आपने बड़े सरल शब्दों में समाज के सामने बड़ी क्लियर बातें रख दी कि अपने बच्चों की रक्षा हम खुद कैसे करें। अब मैं अग्निहोत्री जी से आग्रह करता हूँ, सेशन ओपन है, जो भी ऐड करना चाहे कुछ, काइंडली डोंट रिपीट, लेकिन जो भी ऐड करना चाहे, कुछ छूट गया हो यदि वक्ताओं से, और यदि हम समाज को कुछ बोलना चाहें कि हाँ ये और होने से अच्छा है, इस एज ग्रुप में अच्छा है, सीनियर सिटीजन्स के लिए ये अच्छा है, ऐसा यदि कुछ बोलना चाहे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। आदरणीय अग्निहोत्री। नमस्कार, धन्यवाद प्रोफेसर पवन शर्मा जी। बड़ा अच्छा आज का डिस्कशन रहा, इंक्लूडिंग मी। हम 4 स्पीकर्स ने आज के विषय को अपने अपने तरीके से आगे बढ़ाया, और निश्चित रूप से अभी भी ये विषय तो हमेशा ही अधूरा ही रहेगा, क्योंकि अगर वायरस का म्यूटेशन होता रहेगा तो नए से नए विचार और सोच और चिंतन रहेगा। तो हम आह्वान करते हैं आज उन अपने और प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए डिग्निटरीज का कि वक्ताओं से अगर कुछ पक्ष छूट गया है, जो आज के, जैसे कि पवन जी ने इशारा किया, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिसमें कि हम सभी लोग हैं। सीजन तो सभी को, सीजन तो सीनियर और देता नहीं। हालांकि लोग कहते थे बच्चों से हम बोलत नहीं, जवान हमारे भाई बुड्ढों को हम छोड़त नहीं, चाहे हाय करो चाहे दैया। ऐसे ठंड के लिए कहा गया, पुरानी लोकोक्ति है कि हम बच्चों से हम बोलते नहीं। तो मैडम पारुल जोशी जी कह रही थी, ठीक है कि बच्चे तो अनविज्ञ होते, इनोसेंट होते हैं, बाहर निकल जाएंगे, हाथ पे बोलेंगे, पानी की टब में चले जाएंगे, और माताओं को और उनको केयर टेकर्स को ही केयर करनी पड़ती है। तो विशेष रूप से हमारे बड़े-बड़े कर्णधार 95 और उससे ऊपर साल के चल रहे हैं, और जाड़े उन्हें ले भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं हैं। नहीं, ये तो ऊंची यात्रा है जिसमें इंतजार करता है हर कोई, जीवन भर इंतजार करता है। हमें सुखद मृत्यु मिले, इससे बढ़िया क्या है? तो वो तो अलग चीज हो गई, लेकिन जीवीएम शरदा शतम और आयुर्वेद वाले तो विशेष रूप से हितायु सुखायु के पक्षधर हैं। हम आह्वान करते हैं अपने विद्वान सुधी विद्वानों को कि प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी हमारे सामने उपस्थित दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ नई चीज जोड़ना चाहें तो आप बताइए, जब तक एक दो हम और ले लेते, क्योंकि समय हम सोच रहे थे आज 10 तक निबट जाएंगे। आप नमस्कार बहुत नमस्कार। जी नहीं, सर, नमस्कार। आज की सभी प्रस्तुतिकरण जो है वो काफी बढ़िया थी और सभी पक्ष को ले लिया गया है। केवल मैं एक ही पक्ष जो है ये रखना चाहूंगा। हम जीरो इन्फेक्शन की बात करते, वो जो है वो ठीक नहीं है। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव जो है ये कैसे जो है वो डिजीज की ग्रेविटी कम हो और दूसरा उसकी मॉर्बिडिटी कम हो। तो दीर्घजीवितीय का मैं ये अर्थ निकालता हूं कि भाई प्रोडक्टिव लाइफ जो है ये हो। जीरो इन्फेक्शन तो जो है ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ इज अ रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। तो अप्रोच ये अगर हम रखते हैं कि भाई जीरो इन्फेक्शन की बजाय जीरो केसेस की बजाय कि वो जो केसेस जो भी हो वो माइल्ड टू मॉडरेट के बीच में रहे। सेकंड, उसकी मॉर्बिडिटी जो है वो कम रहे। अप टू द एज ऑफ 70 अगर ये मॉर्बिडिटी कम है तो ये हमारा लिए जो है वो ठीक है। WHO भी जो 69 ईयर्स तक की कहता है, तो वहां तक हम करते हैं तो वो ठीक ठाक, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सभी विद्वज्जन हैं, रेड्डी जी को भी सुना। सर आपने तो जो है वो काफी अच्छा जो है ये सभी पक्ष को ले लिया। रेड्डी जी ने भी जो है वो सभी पक्ष को लिया, और बच्चों के बारे में मैडम ने जो कहा ये एब्सोल्युटली ये अच्छा है। और मैं नाम भूल गया हूँ, ये सिस्टम के जो आए थे उन्होंने ये जो बात की कि भाई हम लोकल इम्पोर्टेंस जो है, देश परीक्षा हम लोग करते हैं आयुर्वेद में, तो देश परीक्षा में ये सभी चीजें जो है ये इम्पोर्टेंट है कि हमें देश के हिसाब से प्लानिंग जो है ये करनी पड़ेगी। तो ये हेल्थ केयर की प्लानिंग है, तो हमें ये देश में ये पूरा पूर्व से जो है वो चलता आ रहा है।
That is the most suitable technique to be observed during the specific season. Thank you very much, sir, for giving me the chance to speak on this one. Thank you very much, sir. And Pawan ji, thank you very much, sir. थैंक यू प्रोफेसर शुक्ला जी, नमस्कार, thank you. नमस्कार सर। बढ़िया बात बताई आपने कि जीरो इन्फेक्शन की स्टेज तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये इन्फेक्शन भी तो हमें इम्यूनिटी देते हैं सर्टेन डिजीज के अगेंस्ट। और हमारे पास बॉडी के अंदर आपने जैसे कहा कि इकोलाई भी पड़ा हुआ है, तरह तरह के हमारे कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं जो हमको नेचुरली उनके एंटीजन से ही हमारी एंटीबॉडी बन जाती है, तो वो तो ठीक है। बट जो मॉर्बिडिटी वाला जो आपने कॉन्सेप्ट दिया वो सही है और बहुत अच्छी प्रगति हुई है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो हम लोग मुश्किल से 40-42 मानते थे, जो आज चाहे जीवनचर्या के विशेषता के या अच्छी दवाइयों के आविष्कार से वो 67-69 आप बता रहे हो ही गया है, अच्छी बात। और हम आज इनवाइट करना चाहेंगे अपने विद्वानों में से प्रोफेसर कामनी दीवान जी जुड़ी थी एक बार, अभी हैं अगर, तो उनकी चर्चा भी है ये होनी चाहिए हमारे। जब तक वो जुड़ते हैं मैं प्रोफेसर रामदास जी को आज बुलाना चाहूंगा कि उनके कुछ चैट बॉक्स में अच्छे विचार आए थे, मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद वैद्य राजन पटंकर जी की हम आशीर्वचन लेना चाहेंगे। तो प्रोफेसर रामदास जी सर, आपका स्वागत है। प्रोफेसर रामदास जी, यू आर इनवाइटेड to this platform to put forward your some of the suggestions which you have put in chat box, so that is very important. Yes, please. Namaste sir. Namaste. Actually, Vasanta Ritu and Shishira are considered as the Shita Kala. Vasanta Ritu comes under Visarga and other one comes under Adana. So both should be differentiated properly. And generally, the winter is translated for Shishira. And Hemanta Ritu is late autumn is the translation we can find. And they advise the three rasas, which are water predominant rasas, Vatahara in the Vasanta Ritu. But when you come to Shishira, all the three rasas are Apya without Apya. That means Kadupikta Kashaya. So because of the Adana Kala, these two things are different. So these two Ritus should be seen separately and should be followed. And another thing that which I found is in both the Ritus, the Srodho Dushti is one of the main thing. So their Abhaya, I just quoted their Abhaya. Agnivedhotri sir told the combination with Abhaya what has to be used for Hemanda and Shishira. Actually, Abhaya is one of the best medicine that which I have found that because of its Vikashi Guna, Srodho Dushti will be removed and it will reach each and every corner. So that is, I found that is one of the best one. And pranayama seems to be another best over there. And another beautiful thing you spoke is whatever be the God has given. Mohsin sir has told that whatever be the God has given, it is for the development. And whatever we are creating 12 months production, it is for the loss. I just made 2 lines over there in Anushtu Brita, 2 lines. You would have gone through it. Whatever we make it, it is generally, it is not for the labha, it is for the nasha only. Whatever be the God has given, it is for the progress only. And this is very important. And Parul Joshi madam, when she told, I told one more doubt I asked her personally. Actually, there is Karalaga. Karalaga is one of the leaf. If with Mathu, if it is given for the children, how it will affect in the children? That only one doubt I have got. Because generally in our place we give in this Ridus, Shita Ridus, this we will make it into the hotness, this Karalaga leaf, and we'll take the juice of that one, 1 or 2 drops of honey we will pour in that one, we will give to the children some 4 or 5 times per day. It generally reduces the kapha and it is Jwarahara also. How its action inside, that is what is the doubt. Sir, can you please tell its other name in Hindi or in for North India? Karala leaves. Karalaga is the Sanskrit word, sir. And in English, in botanical name is Coleus barbatus. Coleus barbatus. Yes, sir. Yes, sir. It is a rock, something thick leaf will be there. Lot of juicy. And it is a very good medicine, sir. We generally give for the children. I will put the photo in that group or anywhere. It's a very good medicine, sir. We give in our village actually. With the honey we give, it is reducing the kapha, it reduces the jwara, and I think it is Agni Sandukshana also. I think so. So generally we give during this season. So how it's work, if madam can guide us, that will be better. This is only the thing, sir. Pranayama, I found it is very much useful because it maintains the oxygen.
Okay, sir. Thank you. Namaskar. Okay, thank you so much for your. I don't know. I did not speak much on medicine and took the advantage. No, Okay, thank you very much. I am thankful for your this inputs because you talked about one thing which is freely used in your area, that too for children. So very naturally, children expert, madam and other person can talk of it, that how it is beneficial. It is beneficial. That's why it is running years together or generations together. Thank you so much. You talked about the Avya. Naturally, as Avya or Haritki, both the names itself carries all the meaningful sense of it. भय रहित करना, it makes person fearless, and also Bharat Yes, sir. Na bhayam asyaha prayojane idi abhaya idi nama. You don't have to fear in using her. That much powerful she is. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. वैद्य राजन पटंकर जी, आपका स्वागत है और आपके लंबे क्लिनिकल एक्सपीरियंस का हमें यहाँ पर चाहिए कि इससे हम ओमिक्रॉन हो या और भी कोई वेरिएंट हो उस पर काम कर सकें, और स्पेशली आपका सूक्ष्म औषधि का कॉन्सेप्ट ओमिक्रॉन BF.7 के लिए क्या, कहाँ पर कैसा आपका दृष्टिकोण है, कैसे इफेक्टिव हो सकता है आपकी सूक्ष्म औषधियों का? धन्यवाद जी। हाँ, सभी पहले से सुन रहा था सभी ने, और आपने तो एकदम ही अच्छा, सबका एकदम प्रिसाइज प्रेजेंटेशन था, तो और क्या ऐड करूं। पर जैसा सभी लोगों ने कहा और अभी जैसा रामदास जी ने कहा कि प्राणायाम, तो प्राणायाम के साथ में ही हमको जो भी दिनचर्या और ऋतुचर्या, ये जैसा मोहसिन जी ने भी कहा, उसका पालन बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मेरे हिसाब से कि कोई भी अगर इन्फेक्शन या कोई भी ऐसा जो आजकल की बड़ी महामारी है, उसको रोकने के लिए हमको सिर्फ बॉडी की तरफ नहीं, माइंड की तरफ भी देखना चाहिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो इसके लिए जो भी जैसे सबने बताया कि ऋतु के हिसाब से शोधन या जो ऋतुचर्या का पालन, कौन से कपड़े परिधान करने हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सभी बातें तो उसमें आई गई। पर सूक्ष्म औषधि के बारे में कहा जाए तो प्रिकॉशनरी एज अ मेजर भल्ला तक और अभ्रक, ये दोनों मैंने पहले भी इसमें बहुत यूज किया था, और सुवर्णमालिनी वसंत सूक्ष्म, पर उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, मैंने इसीलिए आपको इनवाइट करके जानना चाहा था, आपके आशीर्वाद वचन चाहिए थे कि सूक्ष्म औषधि में हमें कई फायदे हैं। एक तो सूक्ष्म औषधि का जो इंडिकेशन आप मैंने अंडर 5 इयर्स और अंडर 12 इयर्स के में किस रूप में कर सकते हैं, और विशेष रूप से उनकी माताएं, उनका परिवार चिंतित रहता है कि फिर से कोई नया इन्फेक्शन आ गया, हम बच्चों को बाहर भी नहीं ले जा सकते हैं, और पता नहीं कितनी एडवाइजरी जारी हो जाए कहीं जरा सा भी अगर आउटब्रेक हो, तो इसलिए जरूरी है कि हम घर पर कुछ चीजें ऐसी सूक्ष्म औषधियां के तौर पर रख सके या रूटीन में ले सकते हैं सीजन विशेष में, इन जनरल, जिससे कि इम्यूनाइजेशन होता रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार कल्याण रस और लोकनाथ रस बच्चों में देता हूँ। हाँ, लोकनाथ रस और कुमार कल्याण, उसके भी फायदे बहुत अच्छे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चों की। जी, इन जनरल दे सकते हैं। हाँ, यस, जरूर। बहुत 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 धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास देखिए प्रोफेसर साधना वाकी जी तो मौजूद ही हैं, साथ साथ आनंद कट्टी जी, आप थोड़ा सा बताइए ना प्रोफेसर रेड्डी जी के साथ में कुछ 2-4 शब्द आपके भी हमें मिल जाते हैं तो आज के वेबिनार का एक अच्छा स्वरूप बन जाएगा। प्रोफेसर आनंद कट्टी जी। हाँ सर, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। In fact, Reddy sir, I attended almost a complete session. Reddy sir spoke very well. आपका भी लेक्चर बहुत ही अच्छा था। नया कुछ ऐड करने के लिए तो नहीं है, लेकिन बीच बीच में एक बात आई थी कि देश परीक्षा की बात आ रही थी। अभी देश परीक्षा तो हमारे यहाँ बहुत 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 बारीकी से बताया गया है कि ऐसा कहते कहते होता है कि आतुर परिज्ञान हेतु ऐसा एक शब्द आ जाता है, जहां पे आपको पेशेंट कौन से जगह से आया है, कौन से देश में उसका जन्म हुआ है, कौन से देश में वो बड़ा है, कौन से देश में वो पीड़ित हुआ है, ये सब जानने के लिए एक चरक संहिता की बात है, जो अभी मॉडर्न साइंस में मेडिकल जियोग्राफी के नाम से एक बड़ा शास्त्र बन के उभर रहा है।
जहाँ पे आपको ये किस जियोग्राफी में कौन सी ज्यादा रोग है और उसका इंसिडेंस क्यों ज्यादा है, प्रेवलेंस क्यों ज्यादा है, ऐसी ऐसी चीजों का चीजों के बारे में हमको जानने की मतलब वो साइंस मेडिकल जियोग्राफी बोल के बढ़ के आ रही है। और रूक्ष रूक्ष रस के बारे में बताया, हेमंत शिशिर। सिर्फ एक चीज याद आ रही है जो बताना चाहता हूँ अभी। तो हम 26 दिसंबर में है, 21 दिसंबर को ये लूनर कैलेंडर का सदर्न सोल्स्टिस शुरू हो गया, जिसको हम उसके बाद हमको ये समर वगैरह शुरू होता है, और इसका कनेक्शन हमारे आगे वाले मकर संक्रांति से भी है। अब ये कैलेंडर जो है ना, ये हम ग्रेगोरियन कैलेंडर देखते हैं, और ये हमारे साथ एक बड़ा छल हुआ है कि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसका कोई बेस नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, वो हमको फॉलो करनी पड़ रही है। इससे पहले आप बहुत बड़ी बात कह रही हम लोग विक्रमादित्य वाला पंचांग नहीं फॉलो कर पाते अपने स्वतंत्र भारत में। क्या बात कह दी है। ये इससे पहले हमारा कैलेंडर चैत्र से ही शुरू होता था, और चैत्र का मीनिंग वही होता है कि हम जो हमारे जीवन के साथ होता है, जैसे कि हमारी लाइफ शुरू होती है, और प्लांट पौधों का भी लाइफ वहां पे शुरू होता है। वो शुरू से अंत तक एक प्रक्रिया होती है, उसको हम देखते थे कि ये लाइफ है, और इसको हम एक साल को ऐसे कैलकुलेट करने का एक मौका था। बीच बीच में हमको ये पूरी घटना भी मैंने हिस्ट्री में पढ़ चुका है कि ये कैसे ये हो गया। अभी 2 मिनट समय है तो मैं बता देता हूँ सर, है ना? जी सर, जी बोलिए बोलिए प्लीज कंटिन्यू। हाँ। तो क्या हुआ है, एक एक बहुत रोचक घटना है जो हिस्ट्री में हुआ है। एक रोम में एक एम्पायर थे, उनका नाम जूलियस सीजर था। जूलियस सीजर ने क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे दिया, और ये जूलियस सीजर का एक ख्वाहिश था कि वो अपने नाम पर एक महीना चाहता था। तो अपने नाम पर एक उन्होंने महीना क्रिएट कर दिया, वो हो गया जुलाई। और उसका आशा ये महीना बनाने का उतना ही नहीं था, उसमें वो 31 डेज चाहता था। तो वो 31 हो गया। अभी ये 31 जो बात निकलती है ना, ये इसको हम सोचना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है उससे पहले क्या था, ये कैलेंडर के हिसाब से जब डेट को एडजस्ट करते थे, तो वो कैलेंडर में लास्ट महीने में जो है ना, वहां पे एडजस्ट करते थे। तो उन्होंने तब की कैलेंडर की लास्ट महीने का एक डेट को उठा के जुलाई में डाल दिया, जुलाई 31 हो गया। उसके बाद एक किंग आ गया अगस्टस सीजर, वो भी वही चाहता था, तो उसका भी एक महीने लास्ट महीने का एक दिन को लेके अगस्त में डाला, तो वो हो गया अगस्त भी 31। ये आपको जानकर हैरान होगी कि ये 2 दिन कहाँ से उठाए। तब की लास्ट महीना फरवरी था, तो ये फरवरी के 2 दिनों को उन्होंने उठा के जुलाई में डाल दिया और अगस्त में डाल दिया। अब आप हमारे कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो ये फरवरी और मार्च तो हमारे चैत्र शुरू होने की टाइम है। तो ये तब की जमाने में भी ऐसा होता था, इन्होंने कुछ अलग कर दिया, तो उसके हिसाब से हमको चलना पड़ रहा है। इसलिए हम जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं चैत्र वैशाख, तो उसको कुछ ध्यान में नहीं रहता है। वो जब ऋतु हम पढ़ाते हैं वो मिड मार्च मिड सितंबर ऐसे ही भाषा में वो पढ़ता है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। देखिए आपने तो आज बड़ा नया समा मान दिया, नया समा मान दिया। मतलब आपको तो हिस्टोरियन होना चाहिए था। और एक बहुत मजेदार बात बताएं, वहां पर किंग अपने अड़ियल रुख अपनाते थे। फिर हमारे पास मार्च भी 31 की है, आपने हाँ देखे ना, दिसंबर भी 31 का। लेकिन देखिए विडंबना देखिए, और हमारे हिंदी महीने कैसे वो व्यक्तिवादी थे। हमारे चैत्र मीन्स चित्रा नक्षत्र से शुरू होगा तो चैत्र, विशाखा नक्षत्र से शुरू होगा तो वैशाख। आप देखिए हमारे जो लूनर मंथ है, प्रोफेसर रामदास जी देंगे। और आपने ये वेबिनार कराने का उद्देश्य ही होता है, जैसे आपने कहा कि देश परीक्षा, अब देश परीक्षा प्रोफेसर रामदास जी बोल रहे थे, कितना भी हम आदान काल विसर काल कर लें,
फिर भी भारत इतना लंबा चौड़ा है कि उसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हमारे यहाँ का आदान काल विसर्ग काल और साउथ के आदान काल विसर्ग काल में ऑटोमेटिकली डिफरेंस आता है, वही सीजनल वेरिएशन है। और पन्ना इनका तो चलते ही लगा, हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष से महीना शुरू होता है और नीचे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष से महीना शुरू होता है। यही वजह से नया संवत विक्रम संवत में जी चैत्र शुरू होने के बावजूद भी चैत्र शुक्ल पक्ष को हमारे यहाँ नवरात्रि के जब आते हैं तब जाके नया संवत्सर होता है। सर ये बात तो हमारे संहिता में भी देखने को मिलती है। हम जब वाग्भट का ऋतु का काउंट शुरू करेंगे तो वो चैत्र वैशाख से होता है, लेकिन सुश्रुत का तो फाल्गुन चैत्र मिलके वसंत बन जाता है। वही तो वो प्रावट वाला चक्कर भी है। तो सभी लोगों के पास मतभेद था और सभी ने अपनी बुद्धि के हिसाब से अपने समय का उपयोग किया और अपनी डोमिनेंसी दिखाई। अब हम उनका सबका किया धरा हम लोग उसको सहन कर रहे हैं या झेल रहे हैं। बिल्कुल सर, वेरी नाइस सेशन सर, थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर योर ग्रेट हिस्ट्री एंड ग्रेट कॉन्सेप्ट्स। अगर आप ना बताते तो हम लोग जूलियस सीजर को और उनको जान ही नहीं पाते कि कहानी कहाँ से चली थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं मैडम साधना जी को बुलाना चाहूंगा, जिससे कि अब आखिरी 3-4 मिनट में अपना वाइंड अप करना चाहेंगे। तो सर मैडम साधना जी स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। जी सर। जी मैम, कुछ आज के वेबिनार के टॉपिक पर और अपने अनुभव के आधार पर थोड़ा सा कुछ इनपुट आप भी दीजिए। कुछ क्या पता आप भी कहीं गहराई से कोई चीज निकालना है जो अभी तक प्रकाशित न हुई हो। जी अनम्यूट कर लीजिए। पहले तो इनको ऑन था मैम। हाँ अभी आए। जी 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 ठीक। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार सर। मैं आज के विषय पे थोड़ा सा आजीबाई का बटवा, जिसको दादी माँ का बटवा बोला जाता है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। जैसे कि बच्चों के ऊपर भी अपनी बात हुई है और पहले से घरों में आया है, चलते आया है कि जब बच्चे का जन्म होता है उस वक्त स्वर्ण का चाटन देते थे। उसको 1.5 बार ऐसे घुमाकर उसमें शहद और घृत मिलाकर उसको चाटन देते थे उसी वक्त, और उसके बाद हम लोग उसको भूल गए। फिर वो वापस से हमने आयुष के तरफ से जो स्वर्ण प्राशन चालू हुआ, पहले साउथ में हुआ, फिर महाराष्ट्र में चालू हुआ, एमपी में भी मैं जहाँ जिस कॉलेज में रही हूँ वहाँ भी मैंने स्टार्ट करवाया है। तो बच्चों में जो 6 महीने से लेके 13 साल तक हर महीने जो डोज दिया जाता है स्वर्ण प्राशन का, उसमें स्वर्ण ब्रह्म अमल की ब्राह्मी विशेषता उसमें होती है। तो सबसे बड़ा बच्चों के लिए एक इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए वो सबसे बड़ा है, और वो भी हमारे घर से ही आया हुआ है आजीबाई का बटवा से। और आजीबाई जहाँ, मुझे उनको प्रणाम करना चाहूंगी कि जिस घरों में आज भी दादी माँ का जो उनको व्यवहार मतलब अच्छा है, उनको सम्मान मिल रहा है, उनको मैं प्रणाम करना चाहूंगी। और हमारी दुख की भी बात है कि काफी सारे घरों में जो हमारे बुजुर्ग थे या दादी माँ थे वो जॉइंट फैमिली नहीं रहने के वजह से ये सब हम बच्चों के ऊपर जो संस्कार डालने वाले हैं या जो भी हमने आज बात की, जैसे मैडम जोशी ने बात की, बच्चों के ऊपर जो भी देना चाहिए या जो खिलाना चाहिए, मसाज करना चाहिए, तो पहले भी बच्चों को तेल लगाकर बच्चों को मसाज करके धूप में बिठाया जाता था। उसके बाद नहलाने की जो पद्धति थी, तो वो आज हम भूलते जा रहे हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूंगी मैं आहार का, हमारा जो प्राकृतिक आहार है शीत ऋतु में वही चीजें हमें मिलती है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। जैसे हम ओमिक्रॉन ने कोविड की बात करें तो उसमें विटामिन सी की बात चलती है कि हम विटामिन सी, तो वही जो है हमें मिलता है। लेमन इस सीजन में आ जाता है, जो गर्मी में हमें 10 रुपए का 1 मिलता है वो अभी 10 रुपए में 4 भी मिल जाते हैं। लेमन है, ऑरेंज है, मौसम्बी है, आंवला है, सबसे बड़ी चीज। तो जो सीजनल फ्रूट्स है वो हमें खाना चाहिए। जैसे अभी हमारी सीजनल चल रहा है कि एक फ्रूट्स अदर सीजनल में मिलता है, जैसे ठंडे में मिलने वाला गर्मी में भी मिल जाता है, तो वो ना खाए। ये सब बातें हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग थे या जो हमारे सीनियर्स थे वो हमें बताते थे। सबसे बड़ी बात, ठंडियों में गाजर आते हैं, गाजर का हलवा हर घरों में
महीने में 4-5 बार बनना चाहिए। वो कभी कभी आजकल कंटाला करते, कौन बनाएगा, लोग कंटाला करते हैं ना। दादी माँ होती तो शायद किस भूंजना, उसमें सब ड्राई फ्रूट्स डालना, ये सब बातें होती थी, और वो बहुत हेल्दी होता है, प्रोटीन ज्यादा होती है क्योंकि घर का घी उसमें पड़ता है, सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स है उसमें, और बच्चों को खिलाए जाते हैं, बड़े भी खाते हैं उसमें, तो ऐसा नहीं कि बच्चे ही खाते हैं गाजर का हलवा। उसके बाद एक लड्डू बनते थे बहुत से घरों में। अभी मैं एमपी में आई तो थोड़ा सा वो एक किराने के लड्डू करके बना रहे, किराना मतलब ड्राई फ्रूट्स का। तो ड्राई फ्रूट्स के जो लड्डू हर घर में जो बनते हैं उसमें हल्दी पड़ती है हमारी, ड्राई फ्रूट्स तो सभी होते हैं, शुंठी उन लोग डालते हैं, मेथी डालते हैं। मैंने यहाँ पे जो है मेरे यहाँ जो बाई लोग हैं उनसे पूछा कि क्या क्या बनाया, उन्होंने लाके भी दिखाया मुझे। तो आज घरों में ये भी चीजें हो रही है, मेथी डालते हैं, तिल डालते हैं, खोबरा उसमें पड़ता है, नारियल जो है, खसखस उसमें जाती है। तो घर में जो भी गर्म चीज है, और उसमें विशेषतः उसमें काली मिरी डाली जाती है। मतलब उस जमाने में भी उनको, दादी माँ को पता था कि ये सब हेवी है, गुरु है जो पचने में जो बहुत हेवी है, तो वो पचाने के लिए उसमें उन्होंने काली मिरी डाली है, मेथी डाली है, ये भी चीजें उनको पता थी। तो हमारी जो संस्कृति है या हमारा जो आहार है, वो ठंडियों में जो भी हमें मिलता है, पालक सबसे ज्यादा मिलता है, और उड़द का जो यूज हमने करना चाहिए कि छिलके वाली उड़द के दाल में पालक और टमाटर डालकर जो सूप बनाए, उससे जो आयरन मिले, तो वो भी बहुत बढ़िया है। उड़द का यूज किया, जैसे कि साउथ में उड़द का वो गाठिया टाइप बनाते हैं, उसमें गुड़ में उसको चाशनी में डालते, मतलब उड़द का और गुड़ का ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि शीत ऋतु में हमें जो भी निसर्ग जो हमें दे रहा है, प्राकृतिक हमें जो चीजें मिल रही है, उसको हमने स्वीकार करना चाहिए, और वो खाने में उसका यूज होना चाहिए ज्यादातर। जैसे मेथी बहुत सारी मिल रही है, पालक मिल रहा है, और सस्ती मिलती है, 10 रुपए की बहुत सारे। तो लोगों में ये बोलता है क्या इतनी सस्ती भाजी लेना, और वही सब्जी वो गर्मी में जाके 10 रुपए वाली सब्जी 100 रुपए में खरीदते हैं। तो जो चीजें जब मिलती है तब लोगों ने लेना चाहिए, और हम लोगों ने, हमारा काम है, वैद्य लोगों ने भी उनको ये बताना चाहिए कि किस तरह का आहार आप लोगों ने शीत ऋतु में ले, ताकि आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा हो, वैदिक क्षमत्व अच्छा हो। तो आगे आने वाली जो गर्मी है, आगे आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स है, और अभी जो ओमिक्रॉन आ रहा है उसके लिए भी वो सबसे बढ़िया है। दादी माँ के बटुए में तो सबसे बढ़िया बात है तुलसी, दालचीनी, काली मिरी, इसका काढ़ा तो सबसे बेस्ट ही है। तो ये सारी चीजें, मुझे इतना ही कहना है कि स्वर्ण प्राशन जो आयुष ने चालू किया है वो सबसे बेस्ट है, उसको हमने ध्यान में रख के उसका प्रचार करना चाहिए, और आहार के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हमने ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने मुझे 2 मिनट दिए। बहुत अच्छा मैडम। आप दो तीन बार स्वर्ण प्राशन की बोली तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि मोहसिन साहब भी यहाँ हैं, और मैं बोल लूं पहले। अब मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि IMA हैज ऑब्जेक्टेड ऑन इट। IMA का कहना है कि स्वर्ण प्राशन से गोल्ड जाता है डायरेक्ट, और मेटल की टॉक्सिसिटी होने के चांस हैं। तो मैं आपका, पारुल जोशी जी का, मोहसिन साहिब का, क्योंकि यूनानी में भी सोने को बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया है, ऐसे हम एक वेबिनार करना चाहते हैं, वेदर स्वर्ण प्राशन इज टॉक्सिक और एलिक्सिक। ओके, हम IMA को जवाब देना चाहते हैं जी सर। आप लोगों की कृपा से हम एक वेबिनार IMA को जवाब देने के लिए 1-2 दिन में प्लान करते हैं कि स्वर्ण प्राशन, डोंट अपोज स्वर्ण प्राशन, उसका टॉपिक ही ये रहेगा कि प्लीज रिकमेंड स्वर्ण प्राशन। सर एक नेक्स्ट नए साल में करे तो ज्यादा ठीक है, मैं भी थोड़ा सा काउंसिल में बिजी हूँ, एडमिशन काउंसिल प्रोसेस, तो मैं कह रही, मुझे भी लगेगा टाइम, तो हम नए साल में उसको करते हैं सर। जरूर जरूर मैडम, जरूर। नए साल के पहले तो केवल एक वेबिनार करने की इच्छा है। अब देखिए आप लोगों को भी सर नया साल मनाना है, तो मैं रिजोल्यूशन फॉर 2023, हम लोग क्या रिजोल्यूशन लें आयुर्वेद के, आयुष के डेवलपमेंट के लिए, कि हम अपनी अपनी साइंस डेवलप करेंगे, और ऐसे डेवलप देखना चाहते हैं। केवल 2-4 पॉइंट हर एक से, यूनिक एक्सक्लूसिव पॉइंट
मैं आमंत्रित करता हूं। आप कहेंगे तो 30 को, नहीं तो आप कहेंगे 31 को ये रख लेंगे, और उनका संकलन करके, और कोई करे कि ना करे, कम से कम हम आयुष समृद्धि के कर्णधार लोग उसको जरूर शुरू करेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना। अग्निहोत्री जी सर। बहुत बढ़िया। Thank you, जरूर, madam. जरूर। Thank you so much for your inputs. You have raised so many things. Especially you talked about the आजीबाई का बस्ता, और आजीबाई की बटुआ से आपने बहुत चीजें निकाली, इम्पोर्टेंट है। और दूसरी तरफ आप ले गई एक बार से गाजर के हलवे पर, तो डायबिटिक लोगों के भी मुंह में पानी आने लगा, और आपने फिर तो वहां पर रुकी ही नहीं, वो लड्डू और फिर सब कुछ बना दिया। बढ़िया, कम से कम नाम तो सुनने को मिल गए, तो ये तो अच्छी बात है। पहले जाड़ा का इंतजार इसलिए करते थे, और जी आपने सर। जो शुंठी और मेथी और सब पालक और उसका बताया, तो उससे तो पड़ोसियों के घर की तरफ भी निगाह नहीं करेगा ओमिक्रॉन, पड़ोसियों के घर की तरफ नहीं। अपन तो इम्यूनाइज हो ही गए नाम ही सुन के। प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी कुछ शायद आखिर में कुछ कहना चाहते हैं। यस सर। एक्चुअली सर, ये पवन जी ने जो एक बात रखी IMA की आज तो राशन के सर बारे में, आज हमने एक आइसक्रीम भेजी है। आइसक्रीम स्वर्ण पत्र को लपेट के दी जा रही है इंदौर की। वो मैंने आपने शायद देखा कि नहीं देखा, तो खिला रहे हैं। क्या बात, इतनी 351 सही है। 351 रुपए की है, और बच्चों को खिलाते थे। तो IMA से हमें क्या लेना देना? वो अपने पास आने वाले मरीजों परिवारों को केयर करें, हम आयुर्वेद वाले अपने पास आने वाले मरीजों की और उनके परिवारों को केयर करें। वैधानिक की बात के लिए मैं एक इस फोरम पे ये शेयर करना चाहूंगा। CCRS और जो इंडिया की जो लीडिंग आयुर्वेद इंस्टीट्यूट है, एपेक्स इंस्टीट्यूट से, वो जो है वो गोल्ड की सेफ्टी के स्टडी जो है ये करे, और इन एसोसिएशन विद IIT। तो एक तो जो है विद पार्टिकल साइज ये प्रॉब्लम नहीं करती है, और किन कंडीशन में ये, क्योंकि गोल्ड सोल अलग चीज है और स्वर्ण भस्म अलग चीज है। करेक्ट सर, करेक्ट। भस्म अलग चीज है और गोल्ड सोल अलग चीज है। जी तो सर। इस पर जो है वो काफी बहस भी पहले हुई है, जामनगर में भी इसके बारे में काफी जो है ये हुआ है। पर दिक्कत ये है कि जब तक US और UK से कुछ नहीं आता तब तक हमको वो जो है वो स्वीकारते नहीं है। करेक्ट सर। तो ये जो है ये क्योंकि प्रैक्टिशनर ये नहीं कर सकते, उसके लिए एक तो वैधानिकता चाहिए और उतना बजट भी चाहिए। सर 2 मिनट मिलेंगे क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। अब बड़े बड़े सम्मान के साथ हम कहते हैं, अगर इस पर भी इसके बाद थैंक यू सो मच। मैं मैंने विनम्र भाव से ये कह रहा हूँ कि अगर अब किसी के पास कोई नया विचार है इसमें शेयर करने के लिए तो उनका स्वागत है। और डॉक्टर साहब 1 मिनट लूंगा। अच्छा बोलिए कटिए ना। हाँ धन्यवाद अग्निहोत्री जी। जी सर, जी बोलिए। आज हेमंत और शिशिर ऋतु पर चर्चा हो रही है। तो संचय प्रकोप प्रचमा वायु ग्रीष्मादिषु तिषु वर्षादिषु च पित्तस्य श्लेष्मना शिशिरादिषु। शिशिर ऋतु जनवरी और फरवरी से होती है, हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर होती है। इस हिसाब से शिशिर ऋतु कफ में नेचुरली कफ की वृद्धि होती है, और इसमें अपन कफवर्धक आहार देंगे तो कफ का ज्यादा वृद्धि नहीं होगा। वसंत ऋतु में जाके कफज व्याधियां नहीं हो जाएंगे। अपने आचार्यों ने शिशिर ऋतु में कफवर्धक या पौष्टिक आहार का क्यों कहा गया है? अरे सर आप तो बेसिक ही छोड़ दे रहे हैं। कफवर्धक आहार देंगे लेकिन शुंठी और मेथी भी तो देंगे, ये तो कोई बात नहीं। सिगरेट को हम अवॉइड तो नहीं कर रहे हैं। कफवर्धक आहार बनाने में ये लड्डू जो बने इसमें सौंठ भी तो डाली गई, मेथी भी डाली गई, उसका साथ चूसी जाठराग्नि दीप्त होती है, कफ और नहीं बढ़ेगा। हमारी बढ़ी हुई जाठराग्नि के द्वारा ये सबका सब पाचन के बाद धातु पोषण होगा। वो हेमंतिकम दोष चयम बसंते, वो जो हमारा वो जो सीजनल इनपुट के कारण जो दोष संचित हो जाता है वो आके निकलता है। एक तो सीजनल कफ बढ़ रहा है, फिर अपना आहार से भी कफ बढ़ाएंगे तो ये कंट्रोवर्सी नहीं हो जाएगा? नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जाठराग्नि दीप्त है, इसीलिए गुरुदेवियों के सेवन करने के लिए गुरु आहार सेवन के लिए सिद्धांत दिया गया है। इसको बहुत सिंपल फंडा है। हम लोग कोई भी केवल मावा हलवा नहीं खाएंगे, उसके साथ में हम जितनी चीजें और जायफल दालचीनी इलायची ये जो सब देते हैं लवंग ये क्या क्या नहीं डालते हैं। हमारे जो पेक्षेक द्रव्य हैं वो तो लेते ही लेते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा मधुर अम्ल लवण का सेवन करना चाहिए इस ऋतु में। प्रोवाइडेड अरे नहीं, दही और शष्कुली भी खाना चाहिए, प्रोवाइडेड आपकी क्षमता है।
हमें आहार में पूरे सिद्धांत को पालन करना होगा। हमें जो है सेगमेंटेड कॉन्सेप्ट नहीं लेना है, सेगमेंटेड और फ्रेगमेंटेड नहीं लेना है, हमें होलिस्टिक लेना है ना। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब विद्वानों ने आज की जो हमारी चर्चा को और गौरवान्वित किया, अलंकृत किया और नए नए थॉट दिए। आप सबका स्वागत है। हम सभी के सुझावों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के सभी अपने साथी और गेस्ट स्पीकर्स का विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं। और डिस्कशन को वाइटल बनाने के लिए हमारे सभी साहब, अपने मोहसिन देलवी साहब, प्रोफेसर रामदास सर, मैडम साधना मैडम और हमारे खट्टी साहब, इन सबका आभार करते हुए हम आज के कार्रवाई को आगे संचालन के लिए प्रोफेसर पवन शर्मा जी को हैंड ओवर करते हैं। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी कल बायोडाइवर्सिटी का दिन है, तो पहले बायोडाइवर्सिटी की एक वेबिनार बाकी है बस, और उसके बाद रिजोल्यूशंस की। बाकी सभी को अभी से नए वर्ष की शुभकामनाएं। एंजॉय करते चलिए। 4-5 दिन है। अंग्रेजी वाले नए वर्ष की है, वही अगस्त और सितंबर वाले की। हमारा तो चैत्र है। अपना तो चैत में जाएगा। चैत्र में जाएगा। तब यूनानी कैलेंडर कब से शुरू होता है मोहसिन साहब? मोहसिन साहब, हिजरी संबत। हाँ, वो कब से उसका भी हम लोग नया साल मनाएंगे। पहला जो होता है वो मुहर्रम होता है। दैट्स समवेयर, बिकॉज़ हमारा भी 10-10 दिन छोटा होता है अप्रैल या कुछ ऐसा ना। हाँ, तो दिस विल बी अप्रैल में एक ईद होगी, तो उसके 2 महीने 10 दिन बाद फिर हमारा वो शुरू होता है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस बार आप लीड लेके इस मंच पे आपका नया संवत बनेगा अच्छी तरह, जैसा आप चाहे। ठीक है, थैंक यू। हिजरी संवत की तैयारियां कर लीजिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी उसका नाम है, हमको सीखने को मिलेगा सर। जी, हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। शुभरात्रि, गुड नाइट। रेड्डी साहब को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर।